Welcome back, dear students. Due to some technical error, I have to start the part first from here. Okay, so let's resume our class. We were talking about the physical classification of matter, in which we know that on the basis of physical state, matter can be classified into three normal states, that is solid, liquid, and gas. But we have two other states of matter like BC, that is Bose-Einstein condensate, and plasma. So in nutshell, we can say that plasma is simply the state of highly energetic particles. And the example is sun. Plasma state exists in sun and due to the phenomena which is known as nuclear fission, in which large amount of energy is released. And second one is Bose-Einstein condensate. Now, what is BC? Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate is named after two famous persons. One is, as you know, that is Bose-Einstein. Okay, one is known as SN Bose, Satyendranath Bose, and another is known as Einstein. These are two famous persons. Okay, actually, it is the Satyendranath Bose who gave the concept of this BC, and he forwarded this theory to Einstein, who warmly accepted this theory, and then it became as BEC, that is Bose-Einstein condensate. Actually, what is BEC? BEC consists of in BC we can say it consists of gas molecules which have very low density, when gas molecules are supercooled at absolute zero, we can say 0 Kelvin. When gas molecules of very low density, they are supercooled at absolute zero, that is 0 Kelvin. It is found that these gas molecules at very low temperature, they try to come closer. Their kinetic energy, their molecular motion ceases. As a result, they come closer and they form a giant molecule, which is known as supermolecule or superatom, which we called as like this. We can say few gas molecules having low density at a very low temperature at 0 Kelvin, their molecular motion gets seized and they come closer together and they form a super molecule or super atom, and which is known as Bose-Einstein condensate. So in rough language, we can say plasma consists of highly energetic particles, whereas in BC the gaseous molecules having very low density, and the density near about 1000 of that of air. When these low density gas molecules are supercooled at a very low temperature near about 0 Kelvin, which we called as absolute zero, these gas molecules come closer and they form a giant super atom or super molecule, which is known as BEC, that is Bose-Einstein condensate. Now, moving next. Now, most important thing which I was about to discuss with you, that is, if you have to define that which is the most stable form of a substance, अगर आपको ये बताना होगा कि कोई भी substance जो है उसकी सबसे stable state या stable form क्या है, ठीक है, there are two factors which decide the stability of a substance. यानी हमारे पास usually there are three physical states of matter: solid, liquid एंड गैस. ठीक है, नाउ एक सब्सटेंस जो है यानी वो किस स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, उसके लिए दो फैक्टर्स है. वन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड अनदर इज नोन एज थर्मल एनर्जी. दीज आर द टू अपोजिंग फोर्सेस विच डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस. यानी एक सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट जो है वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरीके का है और उन मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी जो होती है वो कैसी है. तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स. कांस्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किस तरीके का फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स. और इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम यूजुअली बोलते हैं, यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, ज़्यादातर ये कांस्टेंट पार्टिकल्स में पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड सेकंड वन इज थर्मल एनर्जी. व्हाट इज थर्मल एनर्जी? Thermal energy is simply the energy possessed by particles when
वी सप्लाई हीट और टेम्परेचर टू देम। जब भी आपके पास जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब उनको आप जब उनका टेम्परेचर आप राइज करते हो, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस सब्सटेंस का, या जब उसको हीट करते हो, तो वी कैन से वी आर सप्लाइंग, एक्चुअली वी आर गिविंग काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे दूर चले जाते हैं। तो इन नटशेल वी कैन से क्रक्स क्या निकला इस चीज़ का कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो पार्टिकल्स को पास पास लाने का काम करता है। यानी जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतने जो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है दे कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। वायरएज अगर किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, यानी अगर आपके पास सॉलिड होता है, सॉलिड्स में आपको पता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल साथ साथ होते हैं, क्लोजली पैकेट होते हैं। जब आप उस सॉलिड को हीट करते हो, या जब वो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या बोलते हैं दूर दूर चले जाते हैं। वी कैन से वो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअली लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड्स में ही कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैकेट होते हैं। इसका मतलब इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना मीन्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल का नज़दीक आना। और थर्मल एनर्जी जो होती है जो उनका काइनेटिक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, तो थर्मल एनर्जी जो होती है इट ट्राइज टू कीप दीज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस है, ठीक है, अब इन दो अपोजिंग फोर्सेस जो है इनका नेट इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसकी स्टेबल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो वी कैन से विथ इंक्रीज इन intermolecular force of attraction, a substance can be converted from gases to liquid and from liquid to सॉलिड। क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगा, तो गैसेस जो दूर दूर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे विल ट्राई टू कम क्लोजर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में, जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थोड़े से क्लोजली पैकेड होते हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स और नज़दीक नज़दीक आएंगे एंड वी विल गेट ए सॉलिड, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इट टेंड्स टू कीप कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स together. Whereas when we talk about thermal energy is energy possessed by particles due to increase in temperature, due to increase in heat। और इसका मतलब है अगर हमारे पास सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, इफ़ यू आर सप्लाइंग हीट, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के वी कैन से पास नहीं रहते हैं, दूर चले जाते हैं। अगर ये कंडीशन सॉलिड की थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अगर आप फर्दर इसको हीट करोगे या टेम्परेचर दोगे, ये मॉलिक्यूल्स, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स और दूर दूर भाग जाएंगे। दैट मीन्स दे विल टेक द प्रॉपर्टी, दे विल टेक द शेप ऑफ ए गैस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दो फैक्टर्स, ये दो जो अपोजिंग फोर्सेस है, इनका आपको याद रहा होगा कि किसी भी मैटर की जो स्टेबल स्टेट होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। वन इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड सेकंड इज थर्मल एनर्जी। अब दोनों में से जो डोमिनेट करेगा उसी का नेट इफेक्ट उस सब्सटेंस पे देखा जाएगा, और वो सब्सटेंस उन्हीं इफेक्ट्स के साथ अपनी एक स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये जो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मूविंग to our second phase of this lecture, that is general characteristics of solids। वैसे ये आपने पढ़ा होगा अपने बेसिक क्लास में, फाउंडेशन क्लास में, कि सॉलिड्स किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम सॉलिड्स की डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड्स होते हैं, कोई भी सॉलिड आप ले लो, वेदर यू टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्टोन, और वी कैन से आपके पास ब्रिक होती है, ठीक है, या वी कैन से आपके पास चेयर होती है, आपके पास डस्टर होता है, आपके पास चौक होता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल, वुड होता है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सॉलिड्स के। और ये आपके पास मार्कर होता है, आपके पास पेन होता है, तो आप या आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है जिस पे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे उस फ़ोन की, उस मार्कर की, उस चेयर की उसका एक डेफिनेट मास होता है, ठीक है, क्योंकि वो मास ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। उसका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसकी एक डेफिनेट शेप भी होती है। वो शेप नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये तो आपको समझ आया होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स की, दैट इज जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली शो वाइब्रेटरी मोशन। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट दे आर क्लोजली पैक्ड,
फर्स्ट दे आर क्लोजली पैक्ड, और उनकी पैकिंग इस तरह से होती है, उनका अरेंजमेंट इस तरह से रेगुलर होता है कि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ये फिक्स्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इनको हिलने डुलने का मौका ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक ही मोशन दिखाते हैं, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, यानी वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे डजंट शो एनी टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज दे हैव हायर और ग्रेटर डेंसिटी। एज यू नो कि जितने कांस्टेंट पार्टिकल साथ साथ होंगे, जितनी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी, जितना उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतने क्या कह सकते हैं, उतनी वो ज़्यादा डेंस होगी, क्योंकि वी नो दैट डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना किसी भी सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो एज वी नो अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स साथ साथ उनका अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट है और साथ साथ दे आर टाइटली क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उनका मास ज़्यादा होगा और उसी के साथ उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है सॉलिड्स का, ये मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कहते हैं ना कि किसी भी यूनिट को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंसेप्ट को जब पढ़ना होता है तो जो बेसिक चीज़ें होती है वो माइंड में होनी लाजमी होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सॉलिड्स जो है दे डिफ्यूज वेरी स्लोली। ठीक है, यानी हम बोलते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, जब मूवमेंट होता है किसी भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ आयन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि अगर सॉलिड जो होता है, यूजुअली अगर हम नॉर्मल सॉलिड्स की बात करें तो अगर आप जैसे हमारे पास वाटर होता है, जो वाटर को जैसे हम नीचे ऐसे गिराते हैं, जब जो वाटर हमने ग्लास में रखा होता है, जब उसको धक्का लगता है तो पानी जैसे नीचे गिरता है तो वो क्या करता है, वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, वो डिफ्यूज कर जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। गैस की बात करें, जब आप गैस कहीं पे स्प्रे करते हो या जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, जब आप किसी कोने में क्या करते हो, उसको प्रेस ऑन करते हो तो आप देखते हो कि वो जो गैस होती है विद इन सेकेंड्स वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो गैसेस डिफ्यूज टू अ लार्ज एक्सटेंट, और उससे कम डिफ्यूजन कौन दिखाता है, लिक्विड्स और सॉलिड्स में नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होती है, यानी वो डिफ्यूज कम होते हैं। इसका रीज़न भी यही है कि इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें जो पैकिंग होती है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दियर मीन पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एज यू नो कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मीन्स अगर आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको ये इंटरलिंकेज, अगर आपको ये बॉन्डिंग तोड़नी है, यू हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनकी बॉन्डिंग को, क्योंकि आपको ये पता है कि जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उसको बोलते हैं ना बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर आपको 1 मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसके लिए, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो सॉलिड्स में पैकिंग बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें उन बॉन्ड्स को, उस लिंकेज को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसमें ये जो सॉलिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। और जब आपने इस सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड में, अगर आप चाह रहे हो अब इस सॉलिड को जो आपने कन्वर्ट किया है लिक्विड में, अगर आप इस लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो यू हैव टू सप्लाई नाउ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको और ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा हीट, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, क्योंकि इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। और अगर आप सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो इसकी फॉर्म्स को, तो क्या करना पड़ता है, हमें ये जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन जो होता है, ये जो पैकिंग होती है, इसको डिस्टर्ब करना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड्स में क्लोज होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से लूजली होते हैं, और गैसेस में तो कह सकते हैं ना कि गैसेस में बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट that is solids have low compressibility and high rigidity। compressibility का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, लेट इट, हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मार्कर हमारे पास है, फ़ोन, आप अपने फ़ोन को ही प्रेस करो ऊपर से, क्या आपका फ़ोन जो है क्या इसकी शेप डिफॉर्म हो रही है, क्या वो
अपनी क्या बोलते हैं ना कि अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, व्हेन यू प्रेस, व्हेन यू फोर्स, व्हेन यू, जब इस पे आप कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या इसकी शेप डिफॉर्म हो रही है? तो आंसर है नहीं। नॉर्मली यूजुअली जो भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब वो कंप्रेस नेग्लिजिबल दे शो द फिनोमेना ऑफ कंप्रेशन। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमारे पास स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज जो है, तो आपने देखा होगा स्पॉन्ज जो है वो कंप्रेस होता है, ठीक है, जिसमें जो हम वैसे जो गाड़ियाँ वगैरह जब उनकी सफाई हम करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो उसके दौरान हम वो स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्पॉन्ज जो होता है इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिनमें क्या होती है, एयर ट्रैप होती है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्कीज हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। हाँ, लेकिन सॉलिड जो होते हैं दे आर हाईली रिजिड। अब रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? रिजिडिटी मतलब होता है सॉलिड जो होते हैं ना, दे हैव द प्रॉपर्टी टू मेंटेन देयर ओन शेप। वो अपनी शेप जो होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यानी वो अपनी शेप जो होते हैं, जब आउटसाइड फोर्स उस पर अप्लाई होता है उनकी शेप डिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। यानी उनकी जो शेप होती है वो वैसी की वैसी रहती है जब आप उस पर कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हो। तो हाईली रिजिड होते हैं, ठीक है, और हाईली क्या बोलते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज कि सॉलिड जो होते हैं दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमें जो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड्स, जब हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स, हम पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड्स, या हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हम इनमें देखेंगे कि बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जो इनमें हमें जैसे आयनिक हो गए, मेटेलिक हो गए, कोवलेंट होते हैं, ठीक है। इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, तो देयर मस्ट बी सम कैरियर, ठीक है, कोई कैरियर तो होगा उसके अंदर, जो उस इलेक्ट्रिक करंट को या जो हीट है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। इसका मतलब है कि सॉलिड्स जो होते हैं दे आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उस पर हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो बेसिक चीज़ें थी जो आपने 9th 10th 11th में पढ़ी होगी। बस थोड़ा सा मैंने उसको टच किया ताकि आपको एक कंसेप्ट मिल जाए, आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कि किस तरह से हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन हमें किस बेस पे करनी है? ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कि सॉलिड्स में जो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनका अरेंजमेंट, यानी इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें देखने हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में। इस पे क्वेश्चन आता है, वन इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अनदर इज नोन एज एमार्फस सॉलिड्स। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हो, ऑन व्हाट बेसिस आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। और याद रखना है, जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो सॉलिड्स की इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स, तो उसका जो क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर जो होता है, जो बेस होती है, जिस बेस पे आप इसको क्लासिफाई करते हो, दैट इज नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का कॉन्स्टेंट पार्टिकल को कैसे अरेंज किया गया है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो फिर हमें क्रिस्टलाइन और एमार्फस को इंडिविजुअली पढ़ना है इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनको फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, ठीक है। जैसे आयनिक सॉलिड्स हो गए, हमारे मेटेलिक सॉलिड्स हो गए, कोवलेंट सॉलिड्स हो गए, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सिंपली आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड्स, या तो पूछा जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोवलेंट सॉलिड्स, या व्हाट do you mean or difference between ionic solids from metallic solids or ionic solids from covalent solids. So inshallah in next lecture we will discuss them in detail, classification of solids, ठीक है। तो हम इसको डिटेल्ड वे में देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो पहला जो इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ना कि सॉलिड स्टेट की जो हम बोलते हैं ना कि उसका जो हार्ट है ना, दैट इज़ हम पढ़ेंगे स्पेस लेटस। क्रिस्टल लेटस क्या होता है, स्पेस लेटस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स क्या होती है, और फिर हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स, उनमें नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से होते हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इस यूनिट में प्रोसीड करेंगे। और अगर आपको अभी तक ये लेक्चर
अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर दिस वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, खुदा हाफिज़.